चलो भाई, फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक कौन सा मालूम है सबको? सॉलिड स्टेट। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग इन द सॉलिड। ये पैकिंग का मतलब क्या? कि जैसे हमने वी हैव टेकन अ कंटेनर और इसके अंदर हमको लड्डू भर के रखने का है, तो हम इस तरह से उसको रखेंगे। अबे लड्डू किस तरह से हम रखेंगे इस कंटेनर में? लड्डू के ऊपर लड्डू रखेंगे या किस तरह से एडजस्ट करेंगे? जो भी अरेंजमेंट रहेगा ये कंटेनर में उस लड्डू का, उसको बोलेंगे पैकिंग ऑफ द लड्डू। इन द सेम फैशन wherever the crystalline solids are formed, this constitute the atom, molecules or ion, means particle. The arrangement of that particle in a unit cell at their particular lattice point in crystalline solid is called the packing in the solid. मैं और फिर एक बार रिपीट करता हूँ। The arrangement of the particle at their particular lattice point in a unit cell in that particular crystalline solid is called as packing in the solid. अब ये पैकिंग तीन टाइप की है। हाँ ठीक, एक बात बताना रह गया था, ये जो बीच में जगह रहेंगी उसको बोलेंगे वॉइड, द स्पेस अनऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड द वॉइड। मतलब जो जगह पैकिंग होने के बाद में, पार्टिकल आने के बाद में जो जगह खाली बचेंगी, उस खाली जगह को हम बोलेंगे voids. Now let us talk about the packing in the solid. अब देखो भाई, ये जो पैकिंग इन द सॉलिड है इसको हमको तीन पार्ट में पढ़ने का है, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल पैकिंग, सेकंड टू डायमेंशनल पैकिंग, और थर्ड आएगा थ्री डायमेंशनल पैकिंग। मतलब पहले वन डायमेंशनल पैकिंग, टू डायमेंशनल पैकिंग एंड थ्री डायमेंशनल पैकिंग। मीन्स इसका ये हुआ कि वेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर गोइंग टू बी क्रिस्टलाइजेस, एनी सॉलिड अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, देन what happens? First of all, these particles are arranged in one dimensional fashion. Later on, they adopt the two dimensional arrangement, and later on, when crystal lattice is formed, that will called as the three dimensional packing of the solid. Now, step by step, we learn what is one dimensional, two dimensional, as well as the three dimensional packing, and how the crystals are formed. First of all, we have to learn about the one dimensional packing. क्या होता? जब मैंने तुमको ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर की बात किया था, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, जब मैं ये लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा ओनली बाय अ पॉइंट, दिस पॉइंट आर द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. We have to draw on the blackboard this open structure, because if we draw a space filling structure, it is just impossible to study the type of arrangement present in that particular unit cell, and that's why in order to learn it more easily, we have to draw all the structure in this fashion. These are the open structure in open unit cell, in open structure. The lattice point of the unit cell are represented by a single dot or a small sphere. This small sphere or this point or this dot are nothing but the center point of that particular sphere, means particular particle. Actually, these particles are associated in this fashion. अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा, याद रखना, मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा, तो यहाँ पे these particles are touching with each other. In the same fashion, whenever these particles are arranging themselves in the one dimensional fashion, then
a horizontal line of these particles are formed where each particle touches neighboring two particles. इसका की पॉइंट है, these particles are this pair or particle बोल दो, these are arranging in the horizontal fashion in such a way that one particle is touching neighboring two particle except लास्ट वाले पार्टिकल को छोड़ के। ये जो पार्टिकल है ये ऐसा बोले तो वर्टिकली, ऐसा बोले तो हॉरिजॉन्टली, ये वन डायमेंशनल पैकिंग है। व्हेनेवर दिस पार्टिकल आर अरेंजिंग हॉरिजॉन्टली बाय टचिंग द ईच पार्टिकल विथ टू नेबरिंग पार्टिकल एक्सेप्ट एंड वाला और फर्स्ट वाला पार्टिकल को छोड़ के। नाउ वी कैन से एज दिस, अगर हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया तो डेफिनेटली that line is passing through the center of all the sphere। इसका मतलब हुआ कि all these particles are aligned themselves in the horizontal fashion। This is about the one dimensional packing of the solid। Okay, now if you are talking about the two dimensional packing, what happens? यहाँ पे याद रखना, ये एक पार्टिकल दूसरे दो पार्टिकल को टच किए है, मतलब एक पार्टिकल दो पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच है, टच किए हुए है, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बिकम 2। ने व्हाट डज मीन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर? तो गिवन पार्टिकल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इक्विडिस्टेंस पार्टिकल। दिया हुआ जो पार्टिकल है, दिया हुआ जो स्फीयर है, वो कितने दूसरे पार्टिकल से सराउंडेड है, जो इक्विडिस्टेंस पे जनरली होना चाहिए। इसलिए हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो गिवन पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द हाउ मेनी पार्टिकल और हाउ मेनी पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी सराउंड दैट पर्टिकुलर गिवन पार्टिकल इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। हियर द गिवन पार्टिकल दो बाजू पे दो पार्टिकल इक्विडिस्टेंस पे है करके हमने बोल दिया, इसका जो CN है कोऑर्डिनेशन नंबर है that equal to 2। This is all about the one dimensional packing। Now we have to deal with the two dimensional packing। ये two dimensional packing क्या होता? The arrangement of the particle in two dimensional, सॉरी एक बात एक यहाँ पे बताने का रहेगा था, ये जो वन डायमेंशनल पैकिंग है ये यार तीनों एक्सिस पे रन हो सकती है, इस तरह से भी वो हो सकता है पर रहेगा वन डायमेंशनल। ये हो गया अपना वर्टिकली, ये ऐसा भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी डायरेक्टेड ऑल द थ्री एक्सिस। याद रखना मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोला था, यहाँ पे अगर बोले ऑल दिस पार्टिकल्स आर अलाइंड वर्टिकली, दिस पार्टिकल आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड दिस पार्टिकल आर अलाइंड देमसेल्फ इन डायगोनल फैशन। याद रखना इसको, हाँ ओके। उसके बाद हम देखेंगे ये टू डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है। टू डायमेंशनल पैकिंग का मतलब होता ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ये रहेगा एक ही प्लेन में, मगर ये अब ऊपर ग्रो होगा, ऊपर बढ़ते बढ़ते जाएगा इन वन प्लेन। यहां ये ऐसा बड़ा था, बोल दिया था वन डायमेंशनल। नाउ दिस अरेंजमेंट द पार्टिकल इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन आल्सो बट इन वन प्लेन। सच टाइप ऑफ पैकिंग इन द सॉलिड इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल पैकिंग। नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम टू डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे तो हमने एक लेयर निकाला था, ये वन डायमेंशनल पैकिंग का। When the layer of one dimensional packing are placed one above the other to obtain a multi-layered structure which is lie in only one plane in called as two dimensional packing। फिर से रिपीट करता हूं, क्या करेंगे, ये जो वन डायमेंशनल पैकिंग थी एक लेयर है, ऐसा ही हम दूसरा लेयर इसके ऊपर रखेंगे, ऐसा ही तीसरा लेयर हम इसके ऊपर रखेंगे, तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर को बोलेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग।
तो कैसे ऑप्टेन करेंगे? बाय प्लेसिंग वन डायमेंशनल लेयर ओवर वन अनदर। हम एक डायमेंशनल लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां थोड़ा सा एक बात हमको थोड़ा मतलब एक माइन्यूटली समझने का है। कौन सी? जब हम ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात किया, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात किया, ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, ये बना वन लेयर। नाउ वी हैव टू पुट अनदर लेयर ऑन दिस सिंगल लेयर, फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर अब हमको सेकंड लेयर वी हैव टू पुट, वी हैव टू स्टैक। नाउ व्हाट इज देयर गोइंग ऑन? देयर आर टू वे टू प्लेस दैट अनदर लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर एक दूसरी लेयर रखना है, हमारे पास उसके दो तरीके हैं। व्हाट आर दे? वी कैन पुट द second layer, second one dimensional layer just above जो लेयर नीचे वाली थी, हम जो पार्टिकल है बराबर उसके ऊपर रख रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वे बाय प्लेसिंग और स्टैकिंग द सेकंड लेयर अनदर लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर। कैसा? तो वी पुट दिस another layer in such a way that one particle is lie exactly above the, या बोलेंगे above particle is lying exactly above the lower particle। जो ऊपर वाला पार्टिकल है ये बराबर उसके नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से जब हम इसे लेयर रखते जाएंगे या ऐसा लेयर रखते जाएंगे या ऐसा एक लेयर दो लेयर ऐसे बहुत सारे मल्टी लेयर जब फॉर्म हो जाएंगी, जब ऐसी मल्टी लेयर जब फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा? when we observe the arrangement of this particle we came to know that this particle are horizontally as well as vertically aligned with itself। वो एक दूसरे के साथ vertically as well as in horizontally in alignment है। इसका मतलब क्या हुआ? whenever we are drawing a line then that vertical line or horizontal line whatever it may be that will be passing through center of all the particle which are present in a single row। यहाँ पे जो रो है वहां पे जो पार्टिकल्स है उसके बराबर सेंटर से जाएंगी, इसलिए हमने बोल दिया दिस पार्टिकल इन दिस सिस्टम आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज द वर्टिकली। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा और इनको हम जब पार्टिकल को जोड़ देंगे, देखो भाई ये पार्टिकल को मैं जोड़ता हूं अभी, इनके सेंटर पॉइंट है। ये देखो जब इन पार्टिकल जोड़ूंगा, एक यहां मैं निकालता, यहां निकाल के बताता हूं, ये इस तरह से ऐसा बोल दो, या फिर मैं उसको ये देख लो, यहाँ प्रॉपर मैंने मैप करके उसको बनाया है, तो एकदम रेगुलर बराबर अरेंजमेंट दिख रही है यहाँ पे। ये देख लो यहाँ पे जब मैंने ऐसा परफेक्टली स्क्वायर नहीं बना, फिर भी यहाँ जो इस तरह से बनेगा तो ये कैसे दिख रहा भाई? स्क्वायर समान दिख रहा। यहाँ पे वन पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये देखो एग्जैक्टली अबव एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। यहाँ पे मैंने जब यहाँ इन चार पार्टिकल को जोड़ के देखा तो क्या हुआ? वन सेंट्रल पार्टिकल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द अदर फोर पार्टिकल्स एंड व्हेन दे द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल इज जॉइंट दे आर फॉर्मिंग द स्क्वायर। एंड इसलिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल दो या स्क्वायर पैकिंग बोल देंगे। स्क्वायर पैकिंग। अब स्क्वायर के पैकिंग क्यों बोल दिया? बिकॉज व्हेन वी जॉइन द सेंटर ऑफ
touching particle with each other, we will get the square arrangement, and that's why such type of packing is called as the square packing. यहाँ क्या बनता, स्क्वायर बनता. इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है भाई, ये देखो कोऑर्डिनेट 4 है, बिकॉज द गिवन, ये गिवन पार्टिकल को 4 पार्टिकल डायरेक्टली टच किए हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 पार्टिकल डायरेक्टली टच किए हुए करके हमने इसको बोल दिया द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. ये एक टाइप का पैकिंग हो गया. अब इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ 2-dimensional packing. There the particles of the various rows are horizontally as well as vertically aligned with each other. इस तरह से हम बोलेंगे कि जब इस तरह से होगा तो इसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ 2-dimensional arrangement. Now why it is called as a type of 2-dimensional arrangement? Because ये A layer मैंने बोल दिया, चलो भाई the bottom layer is known as the A layer. Then we placed another 1-dimensional layer over it. मगर रखा कैसे, the particle horizontally as well as vertically alignment में रहना चाहिए. मतलब second layer is, we are putting the second layer exactly one particle over the other in this fashion. एक पार्टिकल के ऊपर बराबर उसके पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल आ रहा है. अब देखो जैसा ये लेयर था एग्जैक्ट, ये जो सेकंड लेयर है बिल्कुल उसकी ट्रू कॉपी है, जेरॉक्स है. जैसा ये बना था वैसा का वैसा ये बना, तो मैंने इसमें बोला डिफरेंट नहीं ना यार. द फर्स्ट लेयर इज आइडेंटिकल विद द सेकंड लेयर, ऑल द लेयर आर आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर. तो अगर ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी ये है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ए टाइप ऑफ 2-dimensional पैकिंग. यहां पे जो, अच्छा चलो इसको अच्छा ठीक बताते हैं, जो व्हाइट्स है ये भी मालूम थोड़े स्क्वायर टाइप, ये देख लो भाई स्क्वायर टाइप है, कंपेरेबल साइज के, मतलब बहुत छोटे नहीं है. इसको हमने बोल दिया ए टाइप ऑफ पैकिंग. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 4 है. यहाँ जब सेंटर ऑफ दिस टचिंग पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई दिस पैकिंग इज सेड टू बी द स्क्वायर पैकिंग. And coordinate number is 4 because 4 particles are touching to the given particle, that is the central particle. All the layers which are placing one above the other, these are totally identical, and that's why this is called as the A type of 2-dimensional packing. इधर भी ग्रो हो रहा and इधर भी ग्रो रहा, but all these particles will lie in the one plane. This is not 3-dimensional, only 2-dimensional, because this all the growing particles are lying in the only one plane, and this is the 2-dimensional packing. ए टाइप ऑफ. अब हम क्विक रिव्यू लेंगे किसके ऊपर, ये क्या चीज होती है भाई, देख लो. ये हमने इस तरह से बना दिया, ये बन गया फर्स्ट लेयर 1-dimensional. Now we have to put another 1-dimensional layer over it to obtain a multi-layered structure in one plane, that is a 2-dimensional packing. Now in first case we put all these particle exactly above the lower particle. ये जो लोअर बॉटम के पार्टिकल है उसके ऊपर हमने एग्जैक्टली अबव दूसरा लेयर रख दिया था, इसलिए in that case all the particles are aligned vertically as well as horizontally. But in this case now what we are doing, the second particle, second layer के जो पार्टिकल आएंगे वो कहाँ रख रहे हैं, तो यार हम इसके डिप्रेशन में, देख लो डिप्रेशन में, कहाँ रख रहे भाई, इनके डिप्रेशन में रख रहे हैं. ये इस तरह से हमने कहाँ रखा, डिप्रेशन में रखा. अब क्या होगा, when we are placing, stacking the second layer, that is not exactly lie above the bottom particle, but they are placed in the depression of this particle. जो लोअर टू 1-dimensional जो लेयर था, लोअर जो लेयर था उसके जो डिप्रेशन है उसके अंदर हमने पार्टिकल रखे. अब यहाँ पे क्या किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वन अबव अदर रख दिया था. इधर वी आर नॉट प्लेसिंग वन अबव अदर, बट वी आर प्लेसिंग दैट पार्टिकल ऑफ द सेकंड लेयर द डिप्रेशन ऑफ दैट फर्स्ट 1-dimensional layer.
तो अब क्या हुआ, मैं अगर यहां से, चलो ठीक, इसके ऊपर और एक निकाल देता हूं मैं, ये डिप्रेशन में आएगा भाई, डिप्रेशन में रखने का है, ये डिप्रेशन में रखने का है। अब क्या करते देखो, अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच लिया, देख लो ये हॉरिजॉन्टली इन अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचेंगे तो दैट लाइन इज पासिंग टू सेंटर ऑफ द ऑल द पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल, भाई कुछ पार्टिकल के सेंटर से जा रहा, यहां से जा रहा, यहां से जा रहा, मगर ये जो सेकंड लेयर था उसके सेंटर से नहीं गया, उसके बीच वाले में से गया। मतलब इसका ये निकलता, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट suppose we can say this is the A layer, we have to call it as a B layer because this is not the true copy of the first layer। इसका एक कॉपी नहीं है, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, इसलिए मैं उसको बोल देगा अगर ये लेयर A है तो ये लेयर B बन गई। यहाँ पे ये भी ये है, ये भी ये है, because all the layers in this fashion of arrangement, all the layers are identical. That's why it is called as the AAA type of two-dimensional close packing or square packing. But if you are talking about the in this fashion of arrangement, when we are placing the particle of the second layer, the depression of that first layer particle, that's why इस particle की second layer की बात करूंगा तो this layer is not so identical as that of the first layer. But when we are placing the third layer, this third layer और फर्स्ट लेयर, ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली इन अलाइनमेंट है। इसका मतलब ये लेयर और ये लेयर सेम है। तो अगर मैंने इसको ये लेयर बोल दिया तो मैं इसको भी ये लेयर बोलूंगा। इसके ऊपर आएगी फिर से बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर। मतलब जब बॉटम की लेयर रहेंगी उसके ऊपर दूसरा आएगा तो ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। वो डिप्रेशन में पार्टिकल हमने रख दिया करके ये बन गई बी लेयर, ये बन गई ये लेयर। उसके ऊपर अगर रखेंगे तो ये भी डिप्रेशन में रखेंगे तो ये लेयर इसके साथ मैच नहीं होगी तो ये बन गई बी लेयर। इस तरह से ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग बन जाएगा। जब ये ए बी टाइप का टू डायमेंशनल पैकिंग बन जाएगा तो भाई जब इनके देखो तो ये मैंने गिवन पार्टिकल, ये पार्टिकल एक ले लिया। अब देखो यार इसको टच करिए कितने पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6। इनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन गया हेक्सागोन। इसलिए मैंने इसको बोल दिया ये स्क्वायर बनता करके स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग। इसको मैं बोलूंगा हेक्सागोनल, hexagonal two-dimensional packing in the crystalline solid. Here the given particle is surrounded by the 6 equidistant particle and that why here Cn बन जाएगा 6, यहाँ बन गया था 4। इस टाइप के पैकिंग को बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग, यहाँ बोलेंगे हेक्सागोनल पैकिंग। यहाँ one particle is touching the 6 particle and that's why co-odd number is 6। यहाँ जो voids है, यहाँ के void के डिफरेंस की बात करते हैं हम। यहाँ के void है ये कैसे भाई, ऐसे थोड़े स्क्वेरिश है और थोड़े बड़े साइज के है। इसलिए याद रखना कि यहाँ पे जो voids आएंगे अनऑक्युपाइड स्पेस आएंगी ये स्क्वायर टाइप रहेंगी। और फिर एक बात और याद रखना कि यहाँ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे उतना ही यहाँ पे स्क्वायर वॉइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कितने पार्टिकल है, 1 2 3 और 4, तो ये बन गया 1 2 3 और यहाँ पे पार्टिकल है तो बन गया 4। मतलब यहाँ कितने वॉइड बन गए, अगर 4 पार्टिकल 4 ही वॉइड रहेंगे। यार वॉइड बड़े हैं, दैट वॉइड आर नॉट इक्वल्स इन साइज एट द पार्टिकल। भाई पार्टिकल जितने वो तो उतने बड़े नहीं रहेंगे, फिर भी दे आर ऑफ कंपैरेबल साइज, थोड़े से बड़े ही है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर पैकिंग अपना हेक्सागोनल पैकिंग, यहाँ पे देखो भाई ये ऐसे व्हाइट बन रहे हैं, ये ऐसे एक ऐसा बनता जिसका वर्टेक्स फेसिंग डाउनवर्ड, यहाँ बोल दिया, यहाँ बोल दिया, ये देखो 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 देखो, देखो ये यहाँ पे बोल दिया तो इसका वर्टेक्स फेसिंग अपवर्ड। इस तरह से ये ट्रायंगुलर वाइड बनेंगे इन हेक्सागोनल प्लेस पैकिंग। यहाँ पे these voids are small as compared to the voids of the square packing solid, square packing two dimensional arrangement से यहाँ पे जो voids है वो
छोटे रहेंगे करके यहाँ ओपन स्पेस कम और पैकिंग ज्यादा करके ये अबाउट टू बी 60.4% इनका पैकिंग इफिशियंसी आ जाता। इफ यू आर टॉकिंग द स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग तो यहाँ पे अबाउट टू बी 54.2% आ जाता है क्या, पैकिंग इफिशियंसी। पढ़ा चुका हूँ इसको, पैकिंग इफिशियंसी क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है बताया हूँ। तो फिर ये बन जाएगा 60.4, ये बनेगा 52.4, यहाँ पे हेक्सागोनल बनेगा, यहाँ क्वाड्रेंट नंबर 6 है, यहाँ पे स्क्वायर पैकिंग बनेगी, यहाँ क्वाड्रेंट नंबर 4 है, यहाँ पे गिवन पार्टिकल सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल, जिसको जो अगर सेंटर को जोड़ दिया तो हेक्सागोन बन जाता करके इनको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब जब हम टू डायमेंशनल पैकिंग ऑफ द सॉलिड की बात करेंगे तो जब वो कौन सा ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग बनेगा तो वहां पे स्क्वायर पैकिंग बन जाता है। एंड जब वो ए बी टाइप का पैकिंग बनाएगा तो वहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाता। यहाँ पे एक बात और याद रखने की, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सच टाइप ऑफ वाइड, ये छोटे है और इसलिए जितने पार्टिकल रहेंगे उससे डबल ये ट्रायंगुलर वाइड्स रहेंगे इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज ऑल अबाउट द टू डायमेंशनल पैकिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो इसको। ठीक है, हम उसके बाद में ठीक है इसके बाद में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब क्या होगा एक थोड़ा जनरल आइडिया देता हूँ। ये जो बना ए बी टाइप या ए टाइप, इनको हम बोलेंगे ए लेयर, उनको बेस में रख देंगे। ये 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल। अब जब ये इस तरह से ग्रो होगा तो हम उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये क्या होती हम अगले पीरियड में देखेंगे।